Hello students, today we'll discuss the new topic respiration. But before that, I would like to connect the older topic as both the topics, nutrition and respiration, are interconnected. We have already seen that we intake food in the form of nutrients that gets digested in our body, in our digestive system, to form macromolecules and micromolecules, and these macromolecules and micromolecules of nutrients are used by various cells and tissues for various life processes activity. Then how that happens and what is the use of this food molecule, how does it get oxidized to produce energy molecule, these things we will study in respiration. Yes, तो अगर हमें रेस्पिरेशन के बारे में जानना है बेटा, तो रेस्पिरेशन का कनेक्शन सीधा सीधा आपके न्यूट्रिशन प्रोसेस के डाइजेशन से भी है. यस, respiration is the process by which the food taken through nutrition get oxidized to release energy for performing various activity. मैंने आपको पहले भी समझाया बेटा, जितना भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं जो कि डाइजेस्ट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जो एब्सॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, दैन दीज न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड बाय ब्लड सेल्स टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी. तो ये जो ब्लड सेल्स है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी मिक्स होता है, इसलिए हम इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है. इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन इसमें ऑलरेडी है, प्लस ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स जो कि इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल्स के पास कैरी कराए जाते हैं ताकि वो एनर्जी रिलीज़ करे, और ये एनर्जी हमें सर्वाइवल के लिए हेल्प करती है, भले वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो. अगर हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक रेस्पिरेशन, अब तक आपने जूनियर क्लासेस में यही सीखा होगा बेटा कि टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड थ्रोइंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसे रेस्पिरेशन नहीं बोला जाता है, इसे ब्रीदिंग बोला जाता है. इसे क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जब सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है या ऑक्सीजन और जो फूड मॉलिक्यूल है यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल, ये जब पूरी तरह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है इस फूड मॉलिक्यूल का, और उससे क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. ऑब्वियसली, लेकिन इसमें जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो हमारे लिए ये बहुत जानना ज़रूरी है कि ये ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कहाँ से होती है एंड हाउ डज़ इट एंड्स टू कन्वर्ट इनटू अ एटीपी मॉलिक्यूल. तो ये पूरा प्रोसेस हम जो है वो रेस्पिरेशन में सीखेंगे इन 4 स्टेप्स. यस, in first video we'll learn the basics, what is the meaning of respiration and how does respiration takes place in plants, terrestrial animals, aquatic animals, insects, and little bit basic. Okay, in second video we will learn detailed study about how does exactly aerobic and anaerobic respiration takes place through chemical pathway. Yes, through chemical pathway. In third video I will tell you the activity, exactly how does the cellular respiration takes place. And in last video, yes, in last video we will learn in detail about the mechanism and process of respiration that takes place in human body, So let's start quickly about the respiration process in general. So if I have to define respiration, so respiration is defined as the process of biochemical oxidation of nutrient in the presence of specific enzymes at optimum temperature in the cells to release energy for metabolic activities. That process is called as respiration. Yes, I am repeating one more time beta. Respiration is defined as the process of biochemical oxidation. Keep that in mind, biochemical oxidation of nutrients
in the presence of specific enzymes, at optimum temperature in the cells to release energy for metabolic activity. This thing is called as respiration. If I have to simply explain in a chemical equation, then I can explain like this: food plus oxygen, food plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy. Energy is given in the form of ATP molecules, which we'll learn in our next video. So how does this takes place? In this, biochemical oxidation takes place of glucose. Glucose is your energy nutrient which provides energy in large quantity. Yes. So ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है completely, एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को डिस्प्लेस करते हैं, एंड उसके बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ये सब में अलग होता है. Some organism use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water, while others do not. देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ग्लूकोज को कंप्लीट ब्रेक डाउन करने के लिए. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म, या इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जहाँ ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन. लेकिन बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल ईस्ट है, या कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिस्पायर करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का, लेकिन उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है. तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अगर मेरे को डिफरेंस बहुत क्लियरली बताना है तो आगे तो आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करना ही है, लेकिन मैं आपको क्लियर बोल देती हूँ. वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. बट अगर हम बात कर रहे हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट होता है एल्कोहल. वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? एल्कोहल. So let's move ahead. If I have to talk about how does respiration takes place in plants, तो plants को भी रिस्पायर करना पड़ता है. they also need energy. तो plants में मैंने आपको न्यूट्रिशन के टाइम भी एक्सप्लेन करा है. there are special cells called as stomata where exchange of gases takes place. yes or no? Stomata is present beneath the leaf surface as well as in the green parts of प्लांट्स. तो यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बेटा. यहाँ तो ये तो समझ में आ गया कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है उसमें स्टोमेटा सेल्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं. बट जो प्रैक्टिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली 1 मार्क के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. दैट हाउ डज द ट्री ट्रंक, अगर आपने ट्री ट्रंक देखा होगा, इट्स वेरी थिक. हाउ डज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन दिस ट्री ट्रंक. हाँ, तो ये जो ब्राउन ट्री ट्रंक होते हैं, तो अगर आप लोगों को ध्यान से देखा होगा तो यू कैन सी सम बबल्स और swollen part over the tree trunk. These are called as lentils. And exchange of gases कहाँ लिया जाता है? इन lentils में. इवन रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, सब में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है जो कि इंश्योर करते हैं कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट है सेल्स का वो एयर से हो सके. अगर हम बात कर रहे हैं गैसियस एक्सचेंज की रूट्स में, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट गैसियस एक्सचेंज इन रूट्स, तो विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रूट्स? देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन. यस, डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है.
जो कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू रूट हेयर एंड पासेज इनटू रूट सेल्स फ्रॉम वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑन इनटू द सॉइल। अगर हम स्टेम्स की बात कर रहे हैं तो स्टेम्स का मैंने आपको पहले ही क्लियर करा है। जो ट्रंक होता है, जो ब्राउन पार्ट होता है, उसमें लेंटिसिल्स नाम का एक पार्ट होता है, लेंटिसेल्स, जिसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है इजीली। और ग्रीन प्लांट्स में तो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस। अगर हम बात कर रहे हैं लीव्स की तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये जो टेक प्लेस करता है, इट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा इन विच किडनी शेप गार्ड सेल्स आर देयर, जिसके अंदर से ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली होता है। आपको ये ध्यान रखना है, स्टोमेटा जो है इसका 2 वे में यूज़ होता है इन गैसियस एक्सचेंज। फर्स्ट इन फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो स्टोमेटा के सेल्स है या गार्ड सेल्स है, दे हेल्प टू इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। दे हेल्प टू इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। वेयर एज रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो क्या करते हैं, स्टोमेटा सेल्स क्या हेल्प करते हैं, टू टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, टू टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको पहले ही बताया था, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो डे टाइम में स्लो होता है प्लांट्स में, एंड नाइट में वो स्पीड अप होता है, क्योंकि डे टाइम में मोस्टली जो प्रोसेस अंडरटेक होता है प्लांट्स में, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट respiration in animals, then if we have to talk about for efficient exchange, some animals respire through their skin. अगर आपको इसका एग्जांपल है, एम्फीबियंस होते हैं जो एम्फीबियंस, यस और नो, दे रिस्पायर थ्रू स्किन। उनकी स्किन मॉइस्ट होती है एंड इट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज। फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर वेरियस ऑर्गन्स होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। इफ़ वी टॉक अबाउट इंसेक्ट्स, देन दे हैव स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ओवर द साइड्स ऑफ बॉडी कॉल्ड एज spiracles which help in gaseous exchange. And if we talk about aquatic animal, for example fishes, yes or no, एक्वेटिक एनिमल्स ये क्या करते हैं बेटा, ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं जो वाटर में प्रेजेंट होता है। दे कैन नॉट ब्रीथ द ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन एयर। द रीज़न इज़ सिंपल कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो क्वाइट हाई होता है, एंड जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर, इस वहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो लो होता है। और ये जो एनिमल्स होते हैं, फिशेस होते हैं, पर्टिकुलरली मरीन एनिमल्स, दे डोंट रिक्वायर मच ऑक्सीजन, सो दैट्स वाई दे इनटेक द ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व इन द वाटर। Okay students, we were talking about how does respiration takes place in aquatic organisms. Aquatic organisms breathe faster than terrestrial organisms because the amount of oxygen dissolved is fairly low compared to the amount of oxygen in the air. मैंने बताया था वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो बहुत लो होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो इनको बहुत स्पीड में रैपिडली करना होता है, तो इनके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि गिल्स होते हैं। यस, गिल्स जो है बेटा एक स्पेशल ऑर्गन्स है जो एक्वेटिक एनिमल में पाया जाता है, जिस पे क्या होता है बहुत सारी ब्लड वेन्स या कैपिलरीज ट्रैवल करती है, और क्या होता है ये वाटर फ्लैश से इसके ऊपर मूव होता है और वो डिफ्यूजन द्वारा ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रो आउट करता है। अगर हम बात कर रहे हैं बेटा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं दे take the oxygen which is present in the atmosphere. Yes, they take the oxygen which is present in the atmosphere as well as they throw out the carbon dioxide in the atmosphere itself only. अगर मुझे आपको और डिटेल में बताना है तो बेटा ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, क्योंकि इन्हें एक डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत होती है, तो दे हैव अ डेफिनेट रेस्पिरेटरी सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ various respiratory organs.
So if I have to tell about birds, lizards and human beings and terrestrial animals, they respire through a special organ called as lungs. Okay, let's study about in detail about difference between aerobic respiration and anaerobic respiration. Hello friends, we have already seen what is the meaning of respiration, how it is different from breathing process, what is the meaning of cellular respiration, and how food is oxidized to produce energy molecule. Today we'll go for the detailed study of how does glycolysis Krebs cycle takes place in our cell as well as cell organelle mitochondria. You have already learnt in 9th class that mitochondria is the powerhouse of cell. Yes or no? तब आपने ये पढ़ा था बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेल होता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से हमारे जितने भी सेल्स एंड टिश्यूज़ है वो अपना प्रोसेस एक्टिविटीज़ करते हैं और वो सर्वाइव करते हैं, और यही एटीपी मॉलिक्यूल्स है जिसको हम एज अ कैलोरी कंज्यूम करते हैं फॉर आवर सर्वाइवल. तो मैं ये इसका फुल फॉर्म होता है एटीपी का एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो ये एग्जैक्टली प्रोड्यूस कैसे होता है, इसमें रोल क्या है ऑक्सीजन का और एरोबिक रेस्पिरेशन का, एनारोबिक रेस्पिरेशन का, वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो एज यू ऑल नो, जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेल के अंदर पार्टिसिपेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज फूड मॉलिक्यूल. यस, फूड मॉलिक्यूल, जितना भी हम फूड खाते हैं उसे जब ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता है तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें बेटा ग्लूकोज जो है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज they are converted into two molecules of pyruvate or pyruvic acid molecules, or pyruvate acid molecules. तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलिसिस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. और ये जो प्रोसेस है बेटा, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. यस, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. ये ऑर्गेनेल में पार्टिसिपेट नहीं करती है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में ये प्रोसेस होती है जिसे हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं. अगर आपको याद होगा, मैंने क्लास में ऑलरेडी आपको ये टीच किया है दैट बाय सपोज दिस इज़ द सेल विथ वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, देन देर आर क्लोरोप्लास्टिड्स, वैक्यूल, वेरियस ऑर्गेनेल्स आर देयर इज न्यूक्लियस टू. What happens when oxygen molecules come? Yes, no, with blood molecule. We have already learned this. There is a blood molecule which is the carrier of oxygen as well as one nutrient, that is might be protein molecule. It enters through the plasma membrane of cell by the process of diffusion here. So when this oxyhemoglobin plus food molecule enters in the cytoplasm, देन द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस गेट स्टार्टेड. अगर मुझे ये बताना होगा सिंपल लैंग्वेज में, तो बेटा ग्लाइकोलिसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर करते हैं टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, और उस टाइम में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, और नेट 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं. ये जो मैं आपको अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बेटा, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर इन योर बुक और इन योर सिलेबस और any other video. This is the extra knowledge. You should know the details what happens inside particularly in your cell. तो अगर मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ तो इसमें क्या होता है, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स they convert into two pyruvate molecules, and when they are converting into pyruvate molecules they are releasing energy. And how much energy is released? 8 ATP molecules net. 8 ATP molecules की इतनी एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में. अगर हम बात करते हैं ये जो प्रोसेस होता है पायरुवेट बनने का, तो ये पायरुवेट बनने का जो प्रोसेस होता है ये
टू वे में कंडक्ट होता है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो यू आर गेटिंग द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑफ रेस्पिरेशन टॉपिक। इस पे क्वेश्चन मोस्टली एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, दिस इज़ फॉर योर हायर क्लासेस, बट you should be aware of the things which happens in your cell, anaerobic respiration as well as aerobic respiration. We'll go one by one in detail. तो ये पायरेवेट का जो है 2 स्टेप में प्रोसेस करता है, वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम पायरेवेट साइकिल का ही एनाएरोबिक रेस्पिरेशन लेते हैं, इफ़ वी आर टेकिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ पायरेवेट साइकिल, तो उसमें भी बेटा 2 स्टेप्स में वो वर्क करता है। पहला स्टेप उसका है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, या उसको हम फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल बोलते हैं, या एल्कोहल फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसमें एल्कोहल फॉर्म होता है, एल्कोहल फर्मेंटेशन, और अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप की, तो सेकेंड टाइप जो सेकेंड स्टेप होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, वो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन के बारे में तो आपको पता ही है, ये प्रोसेस, ये वर्ड आपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। जब कोई भी ऑर्गेनिज़म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो रिस्पायर करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दे प्रोड्यूस अल्कोहल एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ सीधी बात में, तो फर्मेंटेशन का मतलब है जब हम किसी भी चीज़ को फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं या सड़ने के लिए रख देते हैं, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, जैसे कि वाइन बनती है। तो अगर मैं बात करूँ फर्मेंटेशन की, तो यू माइट बी इंटरेस्टेड कि ये प्रोसेस या ये जो फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया थी, वो किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट की होगी। तो फॉर योर जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट वॉज गे लूसेक। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था बेटा, प्रोसेस को। यस, Gay Lussac was the scientist who discovered fermentation process. So let's move one by one in detail. How does it takes place? How does this pyruvate molecules get converted into energy molecule? What are the steps that takes place in alcohol fermentation, and what are the steps that takes place in lactic acid fermentation? First we'll go for the alcohol fermentation. ठीक है, I am not writing fermentation, there is no enough space, but you have understood what I have to say. So if I am talking about alcoholic fermentation, then in that case, two pyruvate molecules which is of 3 carbon molecule. ठीक है, ये जो 2 pyruvate molecules है, इनके अंदर कार्बन कितने होते हैं? 3। ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2 molecules of एसिटिल्डेहाइड। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं बात कर रही हूँ, ये जो 3 कार्बन वाला जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल में, रिड्यूस हो रहा है। देखो, यहाँ 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और यहाँ 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक कार्बन इसमें रिलीज़ हो रहा है, जिसको हम CO2 रिमूव करना बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है। और इसमें जो रिड्यूस करने के लिए जो एंजाइम यूज़ हो रही है बेटा, पायरुवेट मॉलिक्यूल से एसिटिल्डेहाइड में जो रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यूज़ हो रही है, उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। डी मीन्स रिमूव करना, कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन को रिड्यूस करना बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसलिए पायरुवेट से आपको क्या मिलता है? एसिटिल्डेहाइड प्लस CO2 मॉलिक्यूल। आगे बात समझो बेटा, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड पायरुवेट के भी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक बार मैं क्लियरली फिर से पूरी
केमिकल रिएक्शन बता रही हूँ जो कि एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो पायरुवेट कन्वर्ट होता है एनर्जी मॉलिक्यूल में, जबकि वो अल्कोहल फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो एक अल्कोहल का ही ग्रुप है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कैसे वो होता है अल्कोहल में कन्वर्ट। बट आपको ये याद रखना है, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स दे कन्वर्ट इनटू 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल plus 2 carbon dioxide molecules are released as the waste product. They are reduced by the enzyme pyruvate decarboxylase. अगर मैं बात कर रही हूँ 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल की तो वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और एसिटाल्डिहाइड की बात कर रही हूँ तो वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। अगर हम बात कर रहे हैं 2 एसिटाल्डिहाइड की बात, एसिटाल्डिहाइड जो है वो ग्रुप है, ये अल्डेहाइड ग्रुप है जो कि CHO ग्रुप होता है बेटा। ये एक अल्डेहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल्डेहाइड। ठीक है, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल का ग्रुप होता है, जो हमने पहले देख ही लिया है। ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल में, ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल में, जो कि एक एल्कोहल है। और अगर इथेनॉल की बात करेंगे तो वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है बेटा। वो क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये एल्कोहल है, इसलिए इसमें OH ग्रुप होता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं अल्डेहाइड की, तो वो अल्डेहाइड ग्रुप है, इसलिए उसमें CHO ग्रुप होता है। और ये अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए इसमें OH ग्रुप होता है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करती है, तो मैं यहाँ पे लिख कर दे रही हूँ आपको, 2 एसिटाल्डिहाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 इथेनॉल। ठीक है, और ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। जो पहला स्टेप था केमिकल रिएक्शन का वो रिडक्शन प्रोसेस था, जहाँ पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज़ हो रहा था, याद है आपको? हाँ, तो यहाँ पे भी कुछ रिएक्टर होना चाहिए जो कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा। तो इसमें बेटा 2 NADH2 मॉलिक्यूल जो है, ये 2 NADH2 मॉलिक्यूल ये ऑक्सीडाइज होता है और ये कन्वर्ट होता है 2 NAD+ मॉलिक्यूल में, 2 NAD+ मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है एसिटाल्डिहाइड, और इथेनॉल भी 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, लेकिन ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। आ रही बात समझ में? आपको ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, आप ये वीडियो को बार बार देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली एनारोबिक प्रोसेस में जो 2 स्टेप्स है हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जो हमारे 2 स्टेप्स है, एक पहला है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। वो प्रोसेस में क्या होता है, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, मैं P यूज़ कर रही हूँ पायरुवेट के लिए, दे आर कन्वर्टेड इनटू 2 एसिटाल्डिहाइड, AD यूज़ कर रही हूँ मैं इसके लिए, प्लस CO2 मॉलिक्यूल्स विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है ना, बाय द एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि ये जो है ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ से CO2 रिमूव हो रहा है, तो ये प्रोसेस कौन सा है, रिडक्शन। ठीक, और जब ये जो 2 अल्डेहाइड है बेटा, 2 अल्डेहाइड एसिटाल्डिहाइड, ये ऑक्सीडाइज होता है, यूज़ होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है और ये इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, ये इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। और ये इथेनॉल कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए होगा इसे, तो ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ NADH2, जो कि ऑक्सीडाइज होता है NAD+। अब ये जो है ना, ये पूरा एक एक्टिविटी के थ्रू आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा बहुत क्लियरली। ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये एक्चुअली कब, कैसे, कहाँ रिक्वायरमेंट फुलफ़िल की जाती है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, जब मैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि मसल सेल्स में ह्यूमन बींग्स के टेक्स प्लेस करता है, और जिसकी वजह से हमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है हमारे मसल सेल्स में, और हमें फटीग होता है या थकान होती है जब हम बहुत तेज़ दौड़ रहे होते हैं या कोई मस्कुलर वर्क कर रहे होते हैं और एकदम से हमें बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो उस थकान को क्या बोला जाता है, फटीग। तो ये फटीग प्रोसेस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो जब आपको ये बात क्लियर समझ में आएगी।
about how does anaerobic respiration takes place in human beings. So first step we have already learnt in anaerobic respiration, that is of fermentation. Now we'll go for the second step, that is lactic acid fermentation. That is lactic acid fermentation. I have already told that two types of fermentation takes place in anaerobic respiration. First is anaerobic respiration and formation of alcohol, and second is lactic acid fermentation where lactic acid is produced. So how does it takes place? See, when lactic acid fermentation takes place, in that pyruvate molecule is converted into lactic acid. Yes, pyruvate molecule is converted into lactic acid. Again same thing goes, two molecules. Okay, again in this which enzyme is used? LAD. Which enzyme is used? LAD. And full form of LAD is, if I have to tell you the full form of LAD, then the name is lactic acid dehydrogenase. Dehydrogenase. Yes, with the name only you can understand that what is getting reduced here? हाइड्रोजन. yes, इसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन रिलीज होता है. ये इसेंशियल होती है एंजाइम फॉर रिडक्शन ऑफ पायरुवेट मॉलिक्यूल टू लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल, so as to that more and more electrons are released, and these electrons are then taken into the mitochondria, then they are converted into ATP molecules, जो कि हम जब सेलुलर रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो तब आपको समझ में आएगा कि वेयर डज दिस थिंग्स कम फ्रॉम. ओके, सो अगर हम बात कर रहे हैं बेसिकली स्ट्रक्चर की, आई गेस आपको मज़ा आ रहा होगा एंड यू आर इंटरेस्टेड टू नो what is the basic structure of pyruvate molecule, lactic acid molecule, and how does this change takes place. So it's very easy. Let's note down the chemical structure. If I have to talk about pyruvate structure, then it is this kind of structure with a keto group. This is called as keto group. Okay, ये pyruvate है बेटा. ये क्या है? pyruvate. Yes, there is no space, so I will write the lactic acid in next phase. So if I have to talk about lactic acid structure, then it comes like this: CCOH. Here this is what? Lactic acid. Yes, this is lactic acid. From the previous structure, it is very clear that keto group which was here is removed, one bond is removed, yes or no, and hydrogen is added. So ये जो कीटो ग्रुप रिमूव होता है, इसमें कौन सी एंजाइम एक्टिव रहती है? LAD, जिसे हम लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस भी बोलते हैं. ठीक है, एंड इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जैसे हमारा अल्कोहल फर्मेंटेशन में हो रहा था, इसमें भी होता है बेटा. NaDH2 gets converted into NAD+. ओके, अगेन ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडाइज होता है. ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होता है और यही हमारे को इलेक्ट्रॉन्स देता है, जो कि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन की साइकिल में एंटर करता है, एंड इट क्रिएट्स एनर्जी फॉर अस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. चलो अब हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. ये जितना भी बेटा हमने पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा है, दिस टेक्स प्लेस ओनली इन साइटोप्लाज्म, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. नाउ लेट्स मूव अहेड. व्हाट इज द aerobic respiration and how does it takes place in our body? Aerobic respiration. Okay, so if I have to give the definition of aerobic respiration, then the definition is very simple. It means complete oxidation of food molecule. Complete oxidation of food molecule within the cell, then that is process is called as aerobic respiration. तो इसमें भी दो स्टेप्स है बेटा, आपको वो ध्यान से देखने हैं. फर्स्ट स्टेप है, उसमें भी टू सब स्टेप्स है.
एंड सेकेंड स्टेप से। और ये जो पूरा एक प्रोसीजर है फिर वो उसको मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी जो कि हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर हो रहा है, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। अगर मुझे ये बात बतानी है आपको, हाउ डज दिस एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन बेटा 2 स्टेप्स में लेता है पार्टिसिपेट। फर्स्ट स्टेप जो इसका होता है वो होता है रिलीज ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत नेसेसरी होता है। एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। अगर हम ये फर्स्ट स्टेप को क्रिएट कर रहे हैं तो ये फर्स्ट स्टेप आपका जो होगा ये हमेशा होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये कहाँ टेक प्लेस करता है बेटा, सॉरी, इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यानी कि मैंने देखो आपको बताया था, अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर याद है विच यू हैव लर्नड इन योर 9th क्लास, तो आपने कुछ ऐसा फिगर देखा है बेटा, डबल मेम्ब्रेन होती है ना, एंड देन देयर इज दिस इज द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा ये जो प्रोसेस होता है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यानी कि जो उसके अंदर लिक्विड होता है उसके अंदर होता है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का। कैसे होता है ये, क्या होता है इसमें, तो इसमें भी 2 स्टेप्स है। सबसे पहला इसमें स्टेप आता है वो है पायरावेट का, एंड सेकेंड है एसिटिल कोएंजाइम का, एसिटिल कोएंजाइम, जिसे एसिटिल CoA भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, एसिटिल कोएंजाइम A रिलीज होती है। कैसे, ये जो पायरावेट है ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम A में। हाँ, पायरावेट कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम A में, और ये जो एसिटिल कोएंजाइम A है ये प्रोड्यूस करता है मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, ये रिलीज़ करता है हाइड्रोजन्स को। तो ये प्रोसेस को हम सिंगल वे में पढ़ेंगे पहले। तो अगर हमको ये बताना है कि क्या होता है एक्चुअली इस प्रोसेस में, तो इसमें क्या होता है, सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होती है जो कि क्रेब्स साइकिल में होती है। क्रेब्स साइकिल आप पढ़ोगे ही जब हम रीडिंग करेंगे बेटा। तो पहले तो ये होता है कि पायरावेट मॉलिक्यूल्स जो है सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं बेटा। पायरावेट मॉलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटिल कोएंजाइम A, ओके, इसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद में और सीरीज़ ऑफ स्टेप होते हैं जिसमें ये एसिटिल कोएंजाइम A, एसिटिल कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स में, मोर एंड मोर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करता है, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रेब्स साइकिल, क्योंकि क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको फाइंड किया था, इसलिए इसका नाम है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हाँ, ये जो एक चेन बनी होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते जाते हैं मैट्रिक्स में, और उसके बाद में ये जाते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अकर्स इन इनर ये जो सेकेंड चेंज स्टेप है जो कि है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन to produce energy. It takes place in which part? It takes place in inner part of matrix. It takes place in inner part of matrix. Yes, inner part of matrix of mitochondria. Yes, inner part of matrix of mitochondria, जो कि ऑर्गेनेल होता है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, जो कि एनर्जी रिलीज़ करने में हमारी हेल्प करता है।
तो ऑब्वियसली होता क्या होगा इसमें, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो इसमें क्या होता है बेटा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में क्लियर हो ही जाएगा। दे रिलीज लॉट्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसे बोला जाता है हमारे सीनियर क्लासेस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये प्रोसेस होता है बेटा जब ये मॉलिक्यूल्स जो है मूव करते हैं इन द इनर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एनर्जी। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे पास थ्रू ETC, दे पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, electron transport chain to produce more and more energy. In the form of ATP molecules, in the form of ATP molecules, yes, ये एनर्जी देने का काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। और ये जो ETC है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यस, ये होता है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे सेल्स में होता है। हमारी बॉडी में दोनों टाइप का रेस्पिरेशन होता है, दैट इज़ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर मेरे को ये पूरी केमिकल इक्वेशन को लिखना होगा तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल विच गेन अगेन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी मॉलिक्यूल्स, विच कन्वर्ट इनटू एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ हाउ मच, 38 ATP मॉलिक्यूल्स। कितनी एनर्जी रिलीज होती है एक टाइम में, 38 ATP मॉलिक्यूल्स। यस, होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली इन डिटेल व्हाट इज द pathway breakdown of glucose by various pathway which I have explained you right now in detail. ओके तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो लास्ट वीडियो में केमिकल पाथवे जो टेक प्लेस करता है इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन वो डिटेल में समझाया था। बट हाउ डज एग्जैक्टली टेक्स प्लेस इन अ सेल, हाउ अ सेल यूटिलाइजेज द ऑक्सीडाइज्ड फूड in the form of ATP molecules to generate energy for the function of cell, cell organelles, organs, tissues and whole body of organism. तो इसके बारे में आपको एक एक्टिविटी बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। You have seen a car, you have seen a car. Suppose this is a car, it is traveling on a road, okay? अब आपको पता है कार को रन करने के लिए एनर्जी की नीड होती है इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, यस और नो, वी पुट पेट्रोल। पेट्रोल क्या है बेटा, एक फ्यूल है। हाँ, तो क्या पेट्रोल डायरेक्टली कंज्यूम होता है? नहीं। जो कार की बैटरी होती है बेटा, कार की जो बैटरी होती है उसमें क्या होता है, ये पेट्रोल बर्न होता है, कंबशन होता है उसमें, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बैटरी जो है उस वजह से चलती है एंड अकॉर्डिंगली आपकी कार जो है वो रन करती है। तो अगर मुझे एक एग्जांपल बताना है, सपोज मेरी जो कार है इट इज़ रनिंग ऑन 3 बैटरीज, 3 जनरेटर्स और 3 बैटरी। घर में जनरेटर लगाते हैं ना हम लोग, जब बिजली चली जाती है तो फिर ये जनरेटर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो। सो सपोज ये मेरे पास 3 जनरेटर्स है, ओके। इनका काम क्या है, टाइम टू टाइम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स, टाइम टू टाइम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स, ओके।
अब मेरा क्या हो रहा है, ये जो सपोज कार है ये मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये क्या है मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स एज दिस ऑक्सीजन इज supplied by the 3 generator. This oxygen is supplied by the 3 generator. Time to time oxygen is dropped in and oxidation of food is taking place और ये pyruvate molecule बन रहा है. अब सडनली क्या हुआ, सडनली सपोज मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ, इफ़ आई एम रनिंग, हाँ कोई मैं बहुत तेज़ दौड़ रही हूँ, या कोई मैं हैवी मस्कुलर वर्क कर रही हूँ यानी कि मैं वेट लिफ्ट कर रही हूँ, या मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन की नीड पड़ रही है, क्योंकि ये पायरुवेट तो कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली इनटू एटीपी और एनर्जी, है ना. ये सिंपल प्रोसेस चल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चल रहा है. जब ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, वेट आई विल राइट अगेन, ग्लूकोज से जब पायरुवेट बन रहा है तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस, ये आपने पहले पढ़ा है ना. एंड पायरुवेट मॉलिक्यूल से जब आपको एटीपी मॉलिक्यूल्स यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल. ठीक, माय 3 जनरेटर्स आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ताकि मेरा ये जो NADH, NADH2, NADPH ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर सके, और जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दे कैन कन्वर्ट इनटू एटीपी मॉलिक्यूल्स. बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, जब हम कोई रिगरस कोई एक्टिविटी करते हैं, रनिंग है या कुछ है, तो अचानक से ऑक्सीजन सप्लाई जो है, अचानक से जो ऑक्सीजन सप्लाई है जो कि पायरुवेट को कन्वर्ट करने में एटीपी मॉलिक्यूल्स में नेसेसरी होती है, ये ऑक्सीजन सप्लाई अगर रुक जाए, सपोज मेरा नंबर 1 जनरेटर, नंबर 2 और नंबर 3, 1 और 2 तो मेरे को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं या ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट 3 मेरा जो है वो स्टॉप हो गया, तो उस टाइम में क्या होगा, मेरा जो पायरुवेट है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट करने के बजाय क्या कन्वर्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड. यहाँ मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटीपी जनरेट नहीं कर पाएंगे. ऐसे ही जब और मेरा सेकेंड जनरेटर स्टॉप हो जाएगा, तो क्योंकि इनफ ऑक्सीजन रीच नहीं हो पा रहा है, सेल को जितने कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उतने वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले नहीं पा रहा है, और वो उतना ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है न्यूट्रिएंट को, तो इस समय में क्या होगा, इथेनॉल भी फॉर्म हो जाएगा. क्या फॉर्म हो जाएगा, इथेनॉल. और मेरे जो सेल्स हैं दे विल गो फॉर एन एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि मेरे दोनों जनरेटर स्टॉप हो गए. अब मेरी बॉडी क्या कर रही है, एनारोबिकली रिस्पायर कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे मसल सेल्स जो है उनमें लैक्टिक एसिड फॉर्म शुरू हो जाएगा, और मेरे बॉडी में क्रैम्प, मसल सेल्स जो है, मसल सेल्स विल क्रैम्प, यानी कि वो मरोड़ आ जाएगी, जिसकी वजह से मुझे थकान आएगी, मेरे मसल सेल्स जो है वो क्रैम्प हो जाएंगे, एंड आई विल फील टायर्ड, या मुझे थकान होगी या फटीग महसूस होगा. ये क्यों होता है बेटा, क्योंकि रिक्वायर्ड जो ऑक्सीजन है जो सेल्स को टाइम टू टाइम चाहिए होता है कैलोरीज को कन्वर्ट करने में या एनर्जी को कन्वर्ट करने में, वो उतनी अमाउंट में नहीं पहुंच पाता है ड्यू टू रिगरस एक्टिविटी और ड्यू टू मोस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन. तो उसमें क्या होता है, जनरेटर्स हमारे जो है, जो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, वो उतने स्पीडअप में इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो हमारी बॉडी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और हमारे सेल्स को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है. तो जितने भी सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी जनरेट ना करते हुए दे जनरेट एडीपी मॉलिक्यूल्स विच इज़ अ स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी. एडीपी को फिर से अगर हमें एटीपी में कन्वर्ट करना है तो यू नीड प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन. तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि टेक प्लेस करता है विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो क्या होता है एग्जैक्टली, ये जो आपका सेल है, जितना भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो सेल के अंदर होता है. आपको एक सेल का स्ट्रक्चर पता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, वैक्यूल होता है. देयर आर वेरियस ऑर्गेनेल जिन्हें भी सर्वाइवल के लिए या अपनी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है
to produce energy for the cell as well as for the tissues and organs. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जब तक आती रहेगी तब तक तो वो एनर्जी बनाएगा, लेकिन जहाँ एक ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हो जाएगी और कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा एनर्जी का, यानी कि ये एडीपी मॉलिक्यूल्स सारे कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगे 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी में, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है एंड फिर वो मैसेज भेज देता है, लाइसोसोम फिर सेल को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो प्रोसेस यही है कि ये एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। सपोज दिस कार इज़ रनिंग, है ना, एंड 3 जनरेटर्स आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू रन दैट कार, 1 2 3. It is the car is a glucose which is converted into pyruvate molecule, then it is converted into energy molecules, है ना. This is the process takes place in the respiration in the cell. But generator 1 2 3 are providing oxygen time to time. Once the oxygen is stopped from any one of the generators, then what happens? Then these ATP molecules are not generated. These pyruvate molecules are converted into lactic acid. तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो है वो क्रैम्प हो जाते हैं, मसल सेल्स में होता है ये मोस्टली, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है. देन वी इफ़ वी टेक रेस्ट और इफ़ वी टेक अ बाथ विथ अ कोल्ड वाटर, तो क्या होता है, पानी से हमारे बॉडी को तुरंत हमारी मॉइस्ट स्किन से उसको ऑक्सीजन सप्लाई तुरंत मिल जाती है ब्लड को, और फिर हमारी बॉडी के जो क्रैम्प्स है, यानी कि जो जनरेटर हमारे स्टॉप हो गए वो फिर से ऑन हो जाते हैं जब हम ठंडे पानी से बात लेते हैं बेटा, आफ्टर वी आर टायर्ड. तो ये जनरेटर क्या हो जाते हैं, फिर से ऑन हो जाते हैं और दे स्टार्ट गिविंग द ऑक्सीजन. या जब हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाती है, और उसके बाद में क्या हो जाता है, हमारे पायरुवेट मॉलिक्यूल जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गए होते हैं, दे अगेन स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी मॉलिक्यूल, दैट इज़ ATP molecules. This is the process which takes place in your cell and it is called as cellular respiration. I hope you have understood what I have said.